Narendra Modi today spun Priyanka Gandhi's low-level politics jibe to pull out the caste card. Taking to Twitter, Modi said that his rivals think his politics is low-level politics because he belongs to a backward class. In the last leg of this decisive election, Modi appears to be using the backward caste card to counter other players like Mayawati in eastern Uttar Pradesh. आप मुझे बताइए, नीच जाति में पैदा होना गुनाह है क्या? नीच जाति में बड़ा होना गुनाह है क्या? भाइयों बहनों, गरीब होना कोई गुनाह है क्या? मैं हैरान हूं, कांग्रेस के प्रचारक क्या बोल रहे हैं? मुझ पे ये गाली देने पाए आप? नीच जाति का हो इसलिए आप मुझे अपमानित करें? सवाल मोदी का नहीं है, ये तो अहंकार है। भारत का संविधान आपको ऐसी भाषा बोलने की अनुमति नहीं देता है। वो एक मोदी की नहीं, सब गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं भाइयों, सब गरीबों को अपमानित कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, जो सोने की चमचने के पैदा हुए, उनको गरीबी का पता क्या होगा? उनको पता होता है क्या? Abhishek joining in for more. Abhishek, when Modi's rivals say that he is indulging in caste polarization, do they have a point? Because why is Modi suddenly bringing in caste and steering away from his development plank? We'll just try and go across to Abhishek shortly, but BJP's political rivals have been hitting out at Narendra Modi for bringing in the caste factor. Of course, he says he is responding to Priyanka Gandhi's low-level politics jibe. Here's what he said in his rally earlier today. आप मुझे बताइए, नीच जाति में पैदा होना गुनाह है क्या? नीच जाति में बड़ा होना गुनाह है क्या? भाइयों बहनों, गरीब होना कोई गुनाह है क्या? मैं हैरान हूं, कांग्रेस के प्रचारक क्या बोल रहे हैं? मुझ पे ये गाली देने पाए आप? नीच जाति का हो इसलिए आप मुझे अपमानित करें? सवाल मोदी का नहीं है, ये तो अहंकार है। भारत का संविधान आपको ऐसी भाषा बोलने की अनुमति नहीं देता है। वो एक मोदी की नहीं, सब गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं भाइयों, सब गरीबों को अपमानित कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, जो सोने की चमचने के पैदा हुए, उनको गरीबी का पता क्या होगा? उनको पता होता है क्या? Mr. Modi should know that what Priyanka Gandhi Vadra commented on yesterday was on Mr. Modi's pathetic, pedestrian and puerile speech that was substandard. Mr. Modi is clearly at this point of time getting extremely desperate politically. Now that religious polarization has boomeranged on the BJP, they are now trying to use the caste card. पकार के नरेंद्र मोदी बोलना शुरू कर दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं कि बिहार में और बंगाल में रिगिंग हुआ है। ये तो बिल्कुल हार का कबूल करना है। सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और कोई बीजेपी से डेस्परेट नहीं है। नरेंद्र मोदी जगह जगह कह रहे हैं कि यूपी बिहार में ऊंचे पैमाने पे चुनाव में रिगिंग हुई है। तो जब कोई पार्टी हारती है तो उसका सबसे पहला निशाना चुनाव आयोग पर होता है। तो आजकल श्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग पर बड़े निशाने साध रहे हैं। We never discriminate the entire society caste to caste basis. And as far as this tweet is concerned, he is doing caste politics. Nobody knew which caste Narendra Modi ji belonged to. It is he himself who has disclosed that he belongs to OBC.
he is doing this politics. And now he has come down to this level. Even politics is being divided between castes. So, Priyanka ji said he is doing low-level politics. Whether low-level politics belongs to any caste, whether caste politics may also be given the name of caste. It is unfortunate in Bharatiya Janata Party, whether one belongs to upper caste or lower caste, all of them are doing low-level politics. He should understand it. इसके ऊपर क्या कहना है कि ये किस तरीके का मैसेज आप समाज को ये दे रहे हैं और इस तरीके से करने का क्या मतलब है? देखिए, ये छुपे रूप से, दबे रूप से, पीछे से, आगे से किसी न किसी रूप में राम मंदिर का मसला लाना चाहते हैं। इस चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान में लिया है और चुनाव आयोग स्वयं इस पर कुछ कार्रवाई कर रही है। मैं समझता हूं कि मोदी जी का असली चेहरा अब सामने आ गया। विकास वगैरह कुछ नहीं, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं। Well, the BJP has, of course, come out to defend Narendra Modi, saying that parties like the BSP and the SP are indulging in communal politics. आज भी इस क्षेत्र को विकास न मुहैया कराकर यहां समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने अधिकांश समय पर बाहुबलियों और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को संरक्षण देकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयास किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता, एक्चुअल पोटेंशियल के अनुसार इसका विकास करने के लिए कृतसंकल्प है और इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपने चुनाव क्षेत्र के रूप में चुना था। दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां इस क्षेत्र में जातिवादी, अपराधीकरण और बाहुबलियों की राजनीति को प्रश्रय दे रही हैं। हम इसे समाप्त करके